FY25 or 6, but how do you assuage investors that it's not going to happen again? And then that one's for the bankers. And then my first question is for the promoter. Sir, if I may know where you're sitting, I'm not able to see you. Yeah. Oh, great. So first, I'll take it part by part. I think the IPO was never deferred. We had received the SEBI approval last year. I think the governance issue was never a concern, otherwise SEBI wouldn't have cleared it. Second, to your point on brand ambassador fee, there was a brand ambassador fee as in the case of India, the jewelry company, a lot of model and brand ambassadors fees are paid to different people. That was also paid to the promoter. It was brought Sorry, to... I want to understand the rationale behind that. Because if you're the promoter, why do you need a brand fee to promote your own Absolutely, company? if I can answer. So, this was part of his fee that he was taking as part of being the brand ambassador. However, it was brought to his notice that this is a practice which would not be appreciated by the investors, and we have removed. So, if you look for the last 2 years, there have not been any brand ambassador fee which has been paid to him. There is a negative confirmation in the document itself that no such fee will be taken. We also have agreements in place for that. Okay, and my second question is around AKA Exports, which is a related party transaction mentioned in the RHP. Can you explain this company and why you need to purchase diamonds from a related party rather than like procure it separately or incorporate the subsidiary under the company itself? So AKA Exports is part of is the subsidiary of this company. Okay, thanks. Good afternoon, team Lalita Jewelry. Hi. I'm Mehul Dani from FinTech Business. Yes, please tell me. Sir, Lalita Jewelry stores are much larger in size compared to other competitors. So how do you fare in compared to peers in terms of per store revenue, per square feet revenue, profitability, and things like that? So I think Secondly, yeah. sir, how do you deploy technology in order to attract the young generation? Do you have presence on social media? Do you have app to attract them? Thanks. So ये दूसरा question, the first question I'll answer just the financial part, but I'll let Ms. Kiran answer कि ये store size हम क्यों बनाते हैं. In terms of revenue per store, we are the highest in the industry at 400 crores. It's a simple math of 25,000 divided by 61 stores that we operate. In terms of revenue per square feet, we might be among the tops 2 or 3 players in India. We have 6.5 lakh square feet spread and 25,000, so it comes to almost 4 lakh square feet, which is also an impressive number. I think किरण जी इनको ये जानना है कि ये स्टोर साइज हम लार्ज क्यों बनाते हैं अगर आप कॉम्पिटिटर्स के साथ. हाँ सर, मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ कि अगर हम 3 शोरूम दिखाते हैं जहाँ पे 1 लाख और 65,000, अगर 3 शोरूम हम निकाल के देखते हैं तो 7,000 स्क्वायर फीट की साइज है. और दूसरी बात क्या है कि हम जो 2 टायर 3 टायर में जाते हैं, जो हमारा कस्टमर है, तो क्या होता है कि किसी कस्टमर के मतलब जो परचेज के लिए शादी के लिए आ रहा है, तो लड़की वालों की तरफ से भी आते हैं, लड़के वालों की तरफ से आते हैं. तो लेना उनको हार है, मंगलसूत्र है, 4 बंगड़ी है, कान का झुमका है, लेकिन वो करीब करीब 20 लोग हो जाते हैं उनकी तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से. तो एक थोड़ा सा 2 टायर 3 टायर में थोड़ा शोरूम स्पेस रहता है, प्लेस रहता है, तो थोड़ा ठीक रहता है कि शादी का सीजन होता है तो एक ही टाइम में 10 कस्टमर आ जाते हैं, तो आपको लगेगा कि दुकान बहुत भरा हुआ है. तो उसके लिए उस जगह थोड़ा आपको दूसरा क्वेश्चन, और अभी हम जो भी शोरूम जा रहे हैं वो 6,000 स्क्वायर फीट के लिए हम प्लान कर रहे हैं. अब दूसरा क्वेश्चन था कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है कंपनी का या कैसे करते हैं? कंपनी का सोशल मीडिया भी है और कंपनी का तो तीनों लैंग्वेज में है, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा, तीनों लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं. बाकी सोशल मीडिया पे मैं भी आता हूँ, मेरा भी है, मेरा पर्सनल है कंपनी, लेकिन वो कोई बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा नहीं है उसमें. तो शोरूम ओपनिंग होता है या फैक्ट्री का कुछ है तो मैं वो कुछ जानता हूँ उसके. बाकी ठीक है. Good afternoon. Yes, ma'am. My question is, what steps are being taken to mitigate risks arising from heavy inventory levels and our working capital requirements? तो हैवी जो पहले टाइम में 300 ग्राम का, जो मैं आपको साउथ की बात कर रहा हूँ, वड्यान बोले तो कमर का बेल्ट जो 300 ग्राम हो, 350 ग्राम है, जैसे हारम है, अष्टलक्ष्मी हारम, वो सब क्या पहले जो प्राइस था 60-70 हज़ार का प्राइस था तो लोगों को समझ में आता था. अभी उनका बजट क्या होता है कि वो फाइनेंशियली बोलते हैं कि हमको 10 लाख का लेना. पहले एक टाइम में ऐसा था कि मेरी बेटी को मुझे
50 तोला देना है, 50 तोला देना, मतलब समझो आप आधा किलो देना है। अभी वो लोग नहीं बोलते, अभी बोलते कि मुझे 30 लाख का मेरी बेटी को देना है। तो उससे वजह से वो बड़ा आइटम जो हैवी आइटम है वो बिकना बहुत स्लो हो गया। मैं नहीं बोलूँगा कि बंद हो गया, लेकिन बहुत स्लो हो गया। मतलब 10 पीस में 1 पीस बिकता है, पहले 10 पीस में 9 पीस बिकता था। तो अभी हम उसको स्लो डाउन कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे वांटेड है वहाँ पे रखेंगे और बाकी सब निकाल के इसको इन्वेंट्री को चेंज करके लाइट वेट ज्वेलरी पे करेंगे। और अभी लाइट वेट ज्वेलरी हम काफ़ी बनाते हैं। जो मशीन कटिंग बैंगल थी एक टाइम में 16 ग्राम वाले, 16 ग्राम की एक बंगड़ी होती थी और 4 बंगड़ी देते थे, वो भी सब चेंज हो गया। अभी 8 ग्राम और भी इसको करो तो आप अगर 6 ग्राम में भी बना सकते हो क्या, वो पूछते हैं। और हमारे उधर 22 कैरेट ही चलता है। अभी भी वो 18 कैरेट और 14 कैरेट का उधर चलन नहीं है। And my next question is, what is the core difference for Lalita compared to other organized retailers in the market? नहीं, डिफरेंस तो एक ही है कि जो होलसेल में कमाते हैं वो कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो हमारा प्राइस मैच करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है दूसरों को। I'm Prithvi from BC Circle. Yes, ma'am. Sir, just pertaining to your reply that there is no unnatural Yes, ma'am. As per FY26, the latest numbers, the marketing expenses it says it's calculated as a sum of advertising, sales promotion, plus brand ambassador fees. So are you saying that brand ambassador fees is being not? It's not taken. It is just advertising and sales promotion, which is 0.33%. Okay. There is no brand ambassador. Okay. And secondly, what is the reason for the sharp increase? There is no brand ambassador fee paid to him. Yeah. There might be smaller towns a model which has been, taken for a photo shoot. That person must have been given. Now that they'll be termed as brand ambassadors, but not him. Yeah. Okay. What is the reason for the sharp rise in profitability per store? Is it how much of it is contributed by the rise in gold prices and Ma'am, it's very difficult to give you a bifurcation of inventory gain. Basically, what you're asking is how much is the inventory gain versus this one. But that being said, if you look at the prices which have moved, the prices have almost doubled if you compare it to last year to this year. So obviously, price has played an impact. But so has our margins, our core margins have remained stable during that period. okay. And finally, can you also tell me what are some of the hedging practices that you kind of avoid? I'll maybe give you a quick background of what we are doing. But Kiranji, go ahead. आपका customer. अभी कस्टमर एडवांस, जो कस्टमर का एडवांस है जो हमारे पास आता है वो ऑलमोस्ट हमारा गोल्ड का जितना भी स्टॉक है उसके 60% तो हमको कस्टमर का हेजिंग ही है। और हम डेली डे टू डे बेच रहे हैं तो उसका हम गोल्ड खरीद लेते हैं। और दूसरा जो हमारा सीसी लिमिट है, हम इतने लोग IPO में गए और इतने लोगों से मिले तो हमको बहुत जगह आया कि हेजिंग का क्वेश्चन बहुत जगह आया। तो हमने भी डिसाइड कर दिया कि हम भी हेजिंग करेंगे। तो हमने अभी बैंक का जो सीसी है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा बातचीत चल रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाए और तो ये हेजिंग वाला काम हम कर रहे हैं। आप फिलहाल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। Ma'am, if I can just tell you, so typically hedging strategies include all your customer advances plus GML plus NCX if you look at the industry. I am already at 60% inventory is already hedged to that extent. The idea is to take this 60% to whatever percentages over the next 2-3 years, and that's what we said, the discussion was on. When are you planning to launch in Mumbai? नहीं, पहले अभी साउथ इंडिया में बहुत जगह है तो पहले पर यही है कि हमारे इडली वड़ा खाने की आदत है तो हम उधर ही पहले सेटल हो जाएंगे, फिर बाद में ट्राई करेंगे। Are you also into digital gold and नहीं, डिजिटल गोल्ड में भी नहीं और ऑनलाइन में भी नहीं है। मतलब कि वो तो हम हमारा कस्टमर जो है वो फील करता है, पहन के देखता है कि हाँ कैसा लग रहा है मुझे, तो वो एक फीलिंग अलग है। और Sir, what steps Lalita Jewelry what steps Lalita Jewelry is taking to for customer retention and for customer loyalty? हाँ, तो सर अभी हमारा इतना शोरूम है। जब हमने IPO फाइल किया था तब 4,20,000 का कस्टमर का जो कस्टमर एडवांस का
मतलब कस्टमर 4,20,000 आज की तारीख में 4,75,000 है। तो कस्टमर को बहुत ट्रस्ट है ललिता ज्वेलरी के ऊपर, और हम इतनी सी कम शोरूम में इतना जो वॉल्यूम कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कस्टमर को हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और फ्यूचर में को वो हम मेंटेन कर रहे हैं। और अभी फिलहाल और भी प्राइस बहुत हो गया, तो अभी हम ज्वेलरी का जो कस्टमर का डिमांड आता है कि भाई आप लाइट वेट बनाओ, दिखने में बड़ा दिखना चाहिए, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि दिखने में बड़ा दिखे और वजन में भी कम हो जाए। तो कस्टमर तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, काफ़ी साल से जुड़ा हुआ है, अभी ऑलमोस्ट 40 ईयर से ललिता के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही मैंने टेक ओवर बाद में किया, लेकिन ललिता का कस्टमर तो लॉयल है, और वो उनका दूसरा जनरेशन भी आ गया। So if I can just maybe add one point, I can't speak for the industry, but what I can tell you about Lalita is one of the very few jewelry outlets where you can go, take an estimate slip, take the photo of the jewelry and walk out of the store. You can compare the prices anywhere, and then if the price is cheap, go buy there. And that's what his tagline is when he promotes Lalita. Take the estimate slip, take the photo. If you find it cheaper, buy anywhere else. So because he is confident of his pricing, and that's how it's been. Sir, apart from traditional jewelry, are you also into diamonds and lab grown diamonds? नहीं, हम लैब ग्रोन करेंगे। लैब ग्रोन काम करेंगे तो इसी वजह से हमारा क्या डायमंड का जो ज्वेलरी होता है वो नाम कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, और फ्यूचर में जाने का प्रोग्राम देंगे, बाद में देखेंगे। Okay, thank you. किरण जी हो जाए। सो आप ऐसे हम कहें कि आपने इस एन इंस्पिरेशनल स्टोरी टू एवरीबडी कि आप छोटे से होलसेलर से आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हो, और आई कैन से दैट यू आर अ कस्टमर्स मैन, बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर इन फेवर ऑफ कस्टमर्स और प्राइस वाइज ऑल्सो ज्वेलरी ऑल्सो। सर अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी कहा कि 6,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम स्टोर हम लॉन्च कर रहे हैं, सर ये उसके लिए इन्वेंट्री तो अपफ्रंट इन्वेंट्री लगने वाली है, तो आपका जो कैलकुलेशन है 10 स्टोर्स दिस ईयर एंड 10 स्टोर्स कमिंग ईयर, तो ये जो 10 स्टोर्स का जो इन्वेंट्री है, इस इशू में से आप उसमें कितना डायवर्ट करने वाले हैं? नहीं, इसमें से 990 करोड़ ये इन्वेंट्री में जाएगा। और पहले जो हम शोरूम करते थे, मैं आपको ये बात, पहले शोरूम करते थे तो हम बोलते थे कि 100 किलो स्टॉक रखेंगे, लेकिन अभी 100 किलो नहीं रखेंगे, 100 करोड़ का रखेंगे। 95 करोड़ का माल और 5 करोड़ का ये फिक्सन एसेट फर्नीचर वगैरह उसमें। तो क्या हो गया कि अभी बहुत पहले एक टाइम था कि आपको वड्यान वगैरह जो भी 200 ग्राम 300 ग्राम कस्टमर हर कोई मतलब पैसा है तो ले लेता था, प्राइस इतना ठीक था। लेकिन अभी प्राइस की वजह से हैवी वेट बनना बहुत ये हो गया, तो हमको रखने की जरूरत नहीं है, जबकि कस्टमर पूछता भी नहीं है। तो उसकी अभी IPO की वजह से हम 10 शोरूम खोलेंगे और 10 हम खोलेंगे। ललिता ज्वेलरी 5 शोरूम खोलती है और 5 IPO से खोलेंगे इस साल, और अगले साल 5 वापिस ललिता खोलेंगे और 5 IPO से खोलेंगे। तो ये 2 साल का जो प्रोग्राम है वो 20 दुकान का है। सर दूसरा सवाल ये है कि आप ऑलरेडी होलसेल भी करते हो, नहीं प्रेजेंट पहले करते थे, अभी ये आपने वो बहुत पुरानी बात है, 1999 की। मुझे होलसेल करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन लोगों ने लेना बंद कर दिया मेरे से, तो मेरा होलसेल बंद हो गया और मैंने रिटेल ले लिया। इसके बाद में मेरे से कोई माल नहीं लेता है, और आप ऑनेस्टली उनको माल बेच भी नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छा माल है वो तो आपकी दुकान में रखोगे, आपकी डिजाइन आप दूसरों को दी दोगे, तो वो जस्टिस भी नहीं है। मैं होलसेल नहीं करता हूँ, और वो 99 से बंद कर दिया मैंने, 99 से। सर मुझे ये बता दो कि वाई पीपल शुड ट्रस्ट ललिता ज्वेलरी, बिकॉज इसमें ऐसे क्या खासियत है? ललिता में बहुत सारी खासियत है। ये क्या तो बताऊँ, ललिता का प्राइस बहुत अच्छा है, अच्छा हॉलमार्क आ गया, तो उसकी वजह से आप क्वालिटी के बारे में बोल नहीं सकते हो कि ललिता सस्ता बेच रहा है और ललिता की क्वालिटी खराब होगी, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि सबका हॉलमार्क है। तो उसकी वजह से ये हॉलमार्क तो मैं नहीं करता हूँ, ये तो अलग कंपनी करती है। तो उसकी वजह से ललिता ज्वेलरी का जो प्राइस है और ललिता ज्वेलरी का ट्रस्ट है, तो आज की तारीख में हमारे पास करीब 4,75,000 इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। साउथ में तो हमारा प्रेजेंट भी आप देखो कि अभी हम जो 20 शोरूम खोल रहे हैं वो भी हम तमिलनाडु में खोल रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और भी मतलब कस्टमर को और क्या बेहतर दे सकते हैं और कैसे वेट कम कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसको हम रिसर्च करते रहते हैं। और हमारा खुद का डिजाइन टीम है, तो कस्टमर को नया नया हमारे डिजाइन टीम में अच्छा, तो जो नंबर आपको दिए वो ठीक है, लेकिन अभी 45 पीपल हैं, जो 40-45 आदमी हैं जो बैठते हैं वहाँ पे। हम कॉर्पोरेट ऑफिस में भी 10 लोग बिठाए हैं, और वहाँ पे भी हम कैट बनाते हैं, तो काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, और कस्टमर के हिसाब से हम जाएंगे।